Good morning 11th standard. Today we come up with another video of chapter 1 and that is mole concept. Before this, in my previous video we have studied about the atomic masses and molecular masses and the average atomic mass, formula mass that we have described, and today we are going to study about the mole concept. Now first of all, क्या है mole concept? Why there is need to study about this term? So if as we have already said that initially when scientists were doing the work in this one field, that at that time, I'm not talking about today, but at that time the atoms, there are number of atoms and atoms as they are very very small in size, or molecules are very small in size, so it becomes very difficult to count the number of such atoms or molecules in a compound or in a substance, and it becomes really a very big task for the scientist to calculate the accurate number of molecules, yeah, accurate number of atoms, or we can say the accurate number of element present in a substance. So for solving out this thing, there is the one more term comes in a knowledge, and that is the mole concept. ठीक है, तो वो आई हमारी बेटा mole concept. And what is mole means, MOLE, mole का हमने introduce किया. And what is mole? Mole is nothing but it is 1 mole is the amount of substance which contains as many entities. Entities क्या हो सकती हैं? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है. So as many entities as there are present in 12 gram of C12 isotope. ठीक है, so 12 gram of C12 isotope. क्योंकि एटॉमिक मासेस को भी उस टाइम पे किसके साथ किया था, रिलेटिव टर्म में किसके साथ कंसर्न किया गया था या रिलेट किया गया था. सो दैट इज 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप. सो सिमिलरली मोल में भी यही कहा गया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जितने नंबर ऑफ कंपाउंड जो हैं वो 12 ग्राम ऑफ C12 के इक्वली किसी सब्सटेंस के आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे. एंड देयर इज अनदर वन टर्म ऑल्सो इंट्रोड्यूस, दैट इज नोन एज अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो कांस्टेंट. ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एज नंबर वाइज जो थी वो किसके बराबर हो गई? दैट इज इक्वल्स टू द अवोगाड्रो कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23. बेटा जैसे हमने एक टर्म लाए डजन. डजन मीन्स डजन वर्ड का जब यूज किया जाता है तो इट इज इक्वल्स टू 12. फाइन, वेदर देयर इज अ 1 dozen of banana, 1 dozen of oranges, 1 dozen of rackets, badmintons, 1 dozen of balls. आप चाहे बॉल ले लो, that will be also equal in number 12. आप चाहे रैकेट्स ले लो, that will be also equal in 12 बैडमिंटन्स हो जाएंगे. 1 dozen of books, तो 12 बुक्स आपकी आ जाएंगे. 1 dozen of banana means 12 bananas होंगे. तो entity can be varied but the number that will remain same, and that for dozen it is equals to what? It is equals to that is your 12. Similarly हमने कहा है score एक टर्म होती है. Score means 20. ठीक है, तो 1 score is equals to 20. ना 20 is the number. नंबर में मैग्नीट्यूड में कोई भी चीज कितनी रहेगी? 20 रहेगी. तो दैट इज इक्वल्स टू 1 स्कोर. ठीक है, सो हम ये कहते हैं या हम वर्ड टर्म यूज करते हैं ग्रॉस. ठीक है ना, तो ग्रॉस GROSS ग्रॉस. ग्रॉस इज बेसिकली यूज्ड फॉर 144 आइटम्स. 144 नंबर्स के लिए, 144 आइटम्स के लिए क्या यूज किया जा रहा है? ग्रॉस किया जाता है. तो सिमिलरली अवोगाड्रो कांस्टेंट जो था दैट इज इक्वल्स टू या दैट इज यूज्ड फॉर दिस मच नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. और इतने नंबर, जैसे कि मैंने कहा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल्स टू कितना? 6.022 into 10⁻23 water
मॉलिक्यूल्स। या अगर मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। अगर मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, देन इट विल बी इक्वल्स टू क्या 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो CO2 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट 1 मोल जो है वो कितने के बराबर है बच्चे? दैट इज इक्वल्स टू द योर this much number of molecule, this much number of atom, this much number of compound. It depends upon that what type of a substance we are talking. हम किस टाइप के सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। और SI यूनिट के अंदर SI बेसिक कंसेप्ट जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में भी मोल को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए 7 बेसिक क्वांटिटी whose SI unit, mole SI unit is मोल का SI यूनिट, हाँ मोल का SI यूनिट इज MOL, मोल है। ठीक है, क्या है? मोल है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर मोल। होपफुली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार, बिकॉज द टॉपिक इज लिटिल बिट बच्चों को 9th में भी क्लियर नहीं होता, बट यू हैव स्टडीड इट इन 9th, so it must be clear to you. And basically this is very useful for calculations, that how much number of molecules, how much number of atoms, how much number of compounds are present in a particular substance या in a particular mass. ठीक है, एक पर्टिकुलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स या कितने कंपाउंड प्रेजेंट है, कितने फॉर्मूला कंपाउंड प्रेजेंट है, that also can be calculated by this method. So that is the mole. So mole क्या है? That amount of substance which contains as many entries, as many entities. Entities क्या है यहाँ? Atom, molecule या compound, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो substance की बात आप कर रहे हैं। So as there are present in 12 gram of C12 isotope. ठीक है बेटा, and 1 mole is equals to Avogadro number, that is equals to 6.022 into 10⁻23. all right, and there is another one term introduced, that is molar mass. So molar mass क्या है? It is the mass of 1 mole substance in a gram. ठीक है, mass of 1 mole of a substance in a gram is equals to molar mass. Yeah, mass of 1 mole of a substance in gram is called its molar mass. For example, अगर हम water का ही निकाले तो water का क्या हो जाएगा? 2 कैलकुलेट कीजिए, जैसे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हुआ बेटा, तो इट इक्वल्स टू 18। ना व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास? मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती थी U एंड मोलर मास यूनिट इज ग्राम पर मोल, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए ग्राम्स के अंदर कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। ओके, पर मोल में, एक मोल में वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना मोलर मास है? 18 ग्राम। सो दैट इज द मोलर मास। क्लियर हो गया यहां तक? Now students, we are talking about summarize all the things and how it is mole is used in the numericals. What formula we can use, that I am going to tell you. मैंने बताया 1 mole of atom, तो that is equals to, हम कह सकते हैं it is equals to gram atomic mass, जो भी उसका gram atomic mass होगा, और it is also equals to 6.022 into 10 raised to the power number of atoms, क्योंकि वो 1 mole कितने के बराबर है आपके? That is equals to Avogadro number. अगर मैं बात कर रही हूँ 1 mole of molecules की, तो it can be equivalent to gram molecular mass. ठीक है ना, जैसा कि हम बात कर रहे हैं मोलर मास, तो इसके कितने के बराबर हो सकता है?
वो अपने मोलर मास के बराबर हो सकता है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो सकता है, या इट कैन बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, it can be also equals to 6.022 into 10 raised to the power 23 number of that molecule, or it can be also equals to 22.4 liter at STP, standard temperature pressure. बेटा लिक्विड्स वगैरह के लिए कई बार इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी आर यूजिंग द वॉल्यूम, और जहां पर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो तब हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस अवोगाड्रो कांस्टेंट we are using this term, that is 22.4 liter. Standard क्या होना चाहिए, बशर्ते there should be standard temperature and pressure of gases. ठीक है, तो gases के टाइम पे ये भी यूज किया जा सकता है, but when we are talking about volume, तो ये volume wise होगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि न्यूमेरिकल्स में लगता है, दैट नंबर ऑफ मोल्स. तो इसका मतलब अब हम यहां से समराइज करके ये कह सकते हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास. ठीक है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, जितना भी आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा या एप्लीकेशन में दिया होगा, एज वेल एज इफ देयर इज इंस्टेड ऑफ मास गिवन, number of entities given है, number of atoms given है, number of molecules given है, then also we are able to calculate the number of mole by using this formula, that number of moles is equals to number of entities. Number of entities जैसा मैंने बोला कि that can be number of atom, that can be number of molecules, that can be number of formula कंपाउंड. ठीक है, कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के केस में फॉर्मूला मास जाएगा. ठीक, सो दैट कैन बी देयर अपॉन अवोगाड्रो नंबर. अवोगाड्रो नंबर आप लोगों को पता ही है, इट इज इक्वल्स टू 6.022. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटी. एंटिटी क्या क्या है, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल, है ना. ये किसी का भी नंबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इसमें किसका नंबर है, किसी का भी नंबर हो सकता है, अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to the power 23. तो ये भी क्या है आपका, दैट ऑल्सो कैन गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स. मैंने ये वाला ही सिंपली इसमें ओपन किया है, कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं है, यही वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ एंटिटीज that can be in form of atom. अगर फॉर्मूला मास है तो that can be in form of ions. अगर आपका मॉलिक्यूल है तो that can be number of molecules upon Avogadro number, which is equals to 6.022 into 10 raised to the power 23. बेटा इसके बाद the next one, that numericals which are based on the mole concept, that we are doing in my next video. Today you have to just prepare the notes of till this topic. Thank you.